28 پر لکھا. ایک نقطہ اور سماعت کریں کہ اللہ کے نبی نے یہ مٹی کس کو دی؟ بولے بھائی، بھول گئے؟ اور نبی کی تمام جو باحیات ازواج تھی، حضرت خدیجہ کا تو انتقال پہلے ہو چکا تھا، جب تک حضرت خدیجہ رہی نبی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اس کے بعد نبی پاک نے کل کتنے نکاح فرمائے؟ 10. 11 بیویاں رہی رسول کی، مگر ایک بیوی کا حضور کی زندگی میں پھر ایک انتقال ہوا. 2 بیویوں کا حضور کی ظاہری حیات میں انتقال ہوا. 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم حضور کی حیات تک موجود تھی. تو ان 9 بیویوں میں سب سے چہیتی، سب سے عظیم بیوی حضور کی کون سی تھی؟ مجھے بتائیے کون سی تھی؟ حضرت عائشہ. تو جو زیادہ سب سے عزیز ہے مٹی اسی کو دینا چاہیے تھا. ام سلمہ کو کیوں دیا؟ نبی کا غیب چھپا ہوا تھا. نبی جانتے تھے حسین کی شہادت 61 ہجری میں ہوں گی، اور 61 ہجری میں یہ مٹی خون میں تبدیل ہوں گی. اور حضور جانتے تھے 61 ہجری تک میری بیویوں میں کوئی بیوی زندہ نہیں رہیں گی سوائے ام سلمہ کے. تو ام سلمہ کو مٹی دی. اے ام سلمہ یہ مٹی رکھو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سب سے زیادہ تمہاری عمر ہوں گی اور 61 ہجری تک تم زندہ سلامت رہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ دیکھ لیں تاریخ کے 61 ہجری تک حضور کی کوئی بیوی حیات نہیں رہی. اور تب بھی وہابی بولتا ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو یہ نہیں معلوم. ارے جاہل، نبی کو یہ بھی معلوم کب کون مرنے والا ہے، کیسے مرنے والا ہے، یہ بھی نبی کو معلوم ہے. تو بہرحال وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دیا. پھر روایتیں بعد میں آئی، انشاءاللہ اس کا میں ذکر کروں گا کہ اس مٹی کا معاملہ کیا ہوا تھا. اور ایک آخری روایت سن لیں، پھر میں موضوع پہ لوٹ آؤں گا. کل جہاں سے موضوع چھوڑا تھا وہیں. یہ امام جلال الدین سیوطی کے الفاظ حدیث میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ اس کو بہت سارے لوگوں نے لکھے، میں حوالے آگے دیتا ہوں. اور حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ ان اسباقی بن نباتہ رضی اللہ عنہ. حضرت اسباق یہ غالباً تابعی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ آتینا مع علی موادع قبر الحسین. وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت مولا کائنات کے ساتھ تھے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے. جنگ صفین جو امیر معاویہ سے ہوئی تھی، جنگ صفین کے بعد ہی حضرت علی لوٹ رہے تھے اپنے اصحاب ساتھیوں کے ساتھ. تو حضرت اسباق کہتے ہیں کہ اس مقام پر علی ٹھہر گئے جو حضرت حسین کی قتل گاہ تھی، جہاں حضرت امام حسین کی قبر بننے والی تھی. انہوں نے قبر کا لفظ استعمال کیا ہے، موادع قبر الحسین. جہاں حسین کی قبر بننے والی تھی اس جگہ حضرت علی آ کر ٹھہر گئے. بتائیے علی کو بھی علم غیب ہے کہ کس کی قبر کہاں بننے والی ہے، اور اس کو نبی کے علم غیب پر ہی اعتبار نہیں ہے. کون سے عقیدے لے کے چلتے ہیں یہ لوگ؟ فقال ہا ہنا مناخ رقابہم وموضع رحالہم. حضرت علی رک گئے وہاں پر، اور رکنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ وہ زمین ہے جہاں میرے اہل بیت کے اونٹ بیٹھیں گے. کربلا میں جب حسین آئیں گا میرا شہزادہ، یہیں حسین کے اونٹوں کو بٹھایا جائے گا. یہ وہ جگہ ہے، یہیں پر کجاوے رکھے جائیں گے. کجاوے کیا ہوتے ہیں؟ اونٹ کے اوپر وہ جو ایک لکڑے کا بنا ہوتا ہے خواتین کے لیے، جس میں پردے وردے ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کجاوے. یا اونٹ کے اوپر جو باندھتے جس پر بیٹھا جاتا ہے، یہیں پر حسین کے اہل خانہ کے، میرے اہل بیت کے کجاوے رکھے جائیں گے. ومراق دماہم فتیۃ من آل محمد یقتلون بہذہ الاراستی تبقى اہلہم السماء والارض. اور پھر مولا کائنات نے فرمایا یہیں میرے اہل بیت کا خون بہایا جائیں گا، آل محمد کو یہیں پر شہید کیا جائیں گا، اور جب ان کی شہادت واقع ہوں گی تو زمین و آسمان ان پر روئیں گے. یہی وہ جگہ ہے. بتائیے حضرت علی کو تک اب جنگ صفین میں تو مولا علی جب کہہ رہے ہیں تو امام حسین ساتھ میں اور جوان ہیں، تو کم سے کم نبی نے دعا نہیں کی تو علی کر دیتے کہ اے پروردگار عالم اب حسین باشعور ہو گیا. پھر نصیحت بھی کر دیتے کہ حسین دیکھو سیاسی جنگ ہے، ایسی نوبت ہی نہیں آنے دینا کہ یہاں تک تمہارا معاملہ پہنچے. لیکن ایسے کئی روایت نہیں ملتی. ہر جگہ روایت یہی ملتی ہے، خاتون جنت دعا کرتی ہے تو یہی کرتی ہے پروردگار حسین کو سلامت رکھنا، حسین کو ثابت قدم رکھنا. مولا کائنات دعا کرتے تو پروردگار حسین کو ثابت قدم رکھنا، اور رسول اللہ دعا کرتے تو یہی دعا کرتے پروردگار حسین کو ثابت قدم رکھنا. اور یہ حدیث جو میں نے سنائی کہ حضرت علی نے پیشن گوئی کی، زمین کا خطہ بتا دیا. بتائیے دیکھیے یہ علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ علی یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ پیشن گوئی یہ کر دی جائے بھائی کربلا ہوں گی،
जंग होंगी, शहादत होंगी, ये एक पेशन गोई है। मगर साथ साथ ये भी बताया जा रहा है ये जमीन है जहां ऊंट बैठेंगे, ये जगह वो है जहां खैमे लगाए जाएंगे, ये वो जगह है जहां हुसैन का लाशा गिराया जाएगा। बताइए जमीन के खित्तों के साथ तक निशानदेही की जा रही है। क्या इल्म था इन लोगों का। यही वजह है कि बात मुझे याद आ रही है, मैं अर्ज कर दूं, कंजुल उम्माल में हदीस मौजूद है कि मौला कायनात अपने इंतकाल से कुछ अरसा पहले कूफा के मिंबर पे तशरीफ फरमाते और इरशाद फरमाया, लोगों पूछो मुझसे इससे पहले कि तुम मुझे गुम पाओ, इससे पहले कि तुम मुझे फिर ना पाओ, पूछो मुझसे जो चाहे पूछ लो, जिस चीज के बारे में तुम सवाल करोगे खुदा की कसम मैं उस चीज के बारे में तुम्हें बताऊंगा जितने तुम जमीन के रास्तों से वाकिफ नहीं उससे ज्यादा मैं आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। पूछो मुझसे क्या पूछते हो। ये मौला कायनात का इल्म था। तो जब अली का ये इल्म था तो रसूल का इल्म कितना होगा। ये कहता दीवार के पीछे का इल्म नहीं। अबे दीवार नहीं, हाँ तो पूरी करबला आंखों के सामने है, जमीन का एक एक चप्पल आंखों के सामने है। नबी जब कह रहे हैं वो नबी का कहना मान लीजिए 7 हिजरी में हो रहा है या 8 हिजरी में, और जंगे करबला 61 हिजरी में। आका अपने से 50 साल निस्फ सदी आगे की खबर दे रहे हैं, आगे की चीजें नजर आ रही है मुस्तफा को, और ये कहता दीवार के पीछे का उस वक्त नहीं जानते। आइए ये हदीस किन किन लोगों ने लिखा, इसको इमाम तबरानी ने भी मुख्तलिफ अल्फाज, थोड़े अल्फाजों के हेरफेर के साथ लिखा। झील 3 सफ़ा 118 हदीस नंबर 2826। इमाम अबू नोएम ने भी इसको लाया दलाइलुन नुबुव्वत अपनी किताब में सफ़ा नंबर 509 पर। इमाम इब्ने असाकिर ने भी इसको लिखा तारीख दिमिश्कुल कबीर के अंदर जिल 14 सफ़ा 190 पर। इमाम इब्ने हजर अल हैतमी अल मक्की शाफई ने अस्सवाइकुल मुहर्रिका सफ़ा 531 पर लाया। इब्न कसीर ने भी इसको अपनी किताब अल बिदाया व निहाया जिल 11 सफ़ा 572 पे लाया। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब सिर्रुश शहादतैन के अंदर सफ़ा नंबर 13 पर इस रिवायत को नकल किया। अगर इस तरह की ही हम हदीसें बयान करें तो बयान तमाम हो जाएगा, हदीसों की तिलावत मुकम्मल नहीं हो पाएंगी, इतनी पेशन गोइयां इस ताल्लुक से मौजूद है। लेकिन ये 3 या 4 रिवायतें मैंने जो बयान की, 3 रिवायतें बयान की, ये समझने के लिए काफ़ी है कि इमाम अली मकाम करबला में दीन बचाने आए थे, इक़्तिदार हासिल करना मकसद नहीं था, जंग सियासत की नहीं थी, हक़ व बातिल की थी। 3 मुहर्रमुल हराम को इब्न साद अपने लश्कर के साथ करबला पहुंच चुका था। रे की हुकूमत के लालच ने उसको करबला आने पर मजबूर कर दिया। 4000 की फौज लेके इब्न साद आया और हूर इब्न यजीद जो पहले एक फौज लेकर आया था इमाम अली मकाम को करबला पर रुकने पे हूर इब्न यजीद तमीमी ने जहां मजबूर कर दिया था, उसके साथ 1000 की फौज थी, यानी ये कुल 4 और 1 5000 की फौज हो चुकी थी। 3 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी का दिन था उस वक्त तक। उसके बाद जब इमाम अली मकाम 2 मुहर्रमुल हराम को करबला में क़याम पजीर हुए थे, 3 को तो इब्न साद आया था, 2 को ही इमाम ने सबसे पहला काम क्या किया था, कूफा में आपका एक अजीज था, आपने उस अजीज को खत रवाना किया और जासूस को भेजा, अपने एक कासिद को भेजा, जासूस नहीं कासिद को माफ करे, जासूस लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, रुजू करता हूं जुमले से, अपने कासिद को भेजा कि मेरे अजीज दोस्त है कूफा में, उस तक ये खत पहुंचा दो। और ये इमाम अली मकाम का दोस्त कौन था। अगर तारीख के औराक थोड़े पलटे तो फिर समझ में आएगा कि ये दोस्त भी कैसा अजीज दोस्त था। और दोस्तों की पहचान याद रखिए मुसीबत और परेशानी में होती है, वरना खुशी के मौके पर तो सभी दोस्त होते हैं, जो तकलीफ में काम आ जाए वो हकीकी दोस्त होता है। तारीख के औराक पलटे आप जाएं तकरीबन 55 साल पहले, 55 और 56 साल पहले, जब इमाम अली मकाम की उम्र 4 या 5 साल की है, मदीने की गलियों में अपने घर के सामने इमाम अली मकाम खेलते हैं, साथियों के साथ खेल रहे हैं, इमाम हुसैन बच्चे साथ में खेल रहे हैं। रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ के आते, साहबा से कहा आओ फातिमा मेरी बेटी के घर चलें ताकि मैं हुसैन को अपने गोदों में लूं, प्यार करूं, हुसैन से मुलाकात का जी चाहता है। साहबा की एक जमात साथ हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून जन्नत के घर की दौलत कदे की तरफ तशरीफ लाए, देखा हुसैन सामने घर के खेल रहे हैं, बच्चे साथ में खेल रहे हैं। रसूलुल्लाह एक जगह एक पत्थर पे तशरीफ फरमा हो गया और बच्चों को खेलता हुआ देख के खुश हो रहे हैं।
हुसैन कभी इधर भागते थे कभी उधर भागते थे। हुसैन का भागना रसूलुल्लाह को बड़ा पसंद आ रहा था। साहबा भी हुजूर को देखकर खुश हो रहे हैं कि सरकार भी खुश हैं, शहजादे भी खुश हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उन बच्चों के खेलने वालों में एक बच्चे को बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं। फिर अचानक आप उस पत्थर से उठे और दौड़ के गए और उस बच्चे को पकड़ लिया। फिर आका ने उसके लबों को बोसा दिया, उस बच्चे के पेशानी को बोसा दिया, सर को बोसा दिया। सब हैरत ज़दा हो गए कि हुजूर इस तरह तो प्यार हसन और हुसैन से करते हैं, मगर आज नबी ने इस बच्चे से भी वैसे ही प्यार का सलूक किया जो हसन और हुसैन के साथ किया जाता था। साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, इन तमाम बच्चों में इस बच्चे में क्या खास बात है कि आपने इसको दौड़ कर पकड़ा, दौड़ के पकड़ने के बाद अपने आगोश में लिया, इसके लबों को भी बोसा दिया, पेशानी को भी बोसा दिया, गालों को भी बोसा दिया। आपने फरमाया, मेरे साहबा, जो मंजर मैंने देखा क्या वो तुमने नहीं देखा? कहा, अल्लाह के नबी, हमने इस बच्चे की तरफ तवज्जो नहीं किया, आपने क्या देखा? कहा, मैंने देखा कि ये हुसैन के साथ खेलता है और जब हुसैन दौड़ते तो जहां मेरे शहजादे हुसैन का कदम लगता है ये वहां की खाक को उठा के पेशानी पे लगाता है, लबों पे लगाता है, आंखों में लगाता है। इससे मैंने अंदाजा लगा लिया इस बच्चे को मेरे शहजादे हुसैन से बड़ी मोहब्बत है। फिर आपने उस बच्चे के सर पे हाथ फेरा और दुआ की कि फिर फरमाया, बच्चे बताओ क्या नाम है? उस बच्चे ने नाम बताया, हुजूर मुझे हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं। कहा, हबीब ये बताओ मेरे शहजादे हुसैन से मोहब्बत करते हो? कहा, या रसूलल्लाह, हाँ मोहब्बत करता हूँ। कितनी मोहब्बत करते हो हुसैन से? कहा, अल्लाह के नबी, मैं हुसैन के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। फरमाया, मैं वो मंजर देख रहा हूँ, खुदा की कसम तुम हुसैन के साथ अपनी जान कुर्बान करेगा करबला की जमीन पर, और हबीब बच्चे मैं बशारत देता हूँ जन्नत में तू हुसैन ही के साथ जन्नत में जाएगी। ये वही रफीक और दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर जो बाद में कूफा आ गए थे हज़रत अली के ज़माने में। बहुत बड़े ताजिर थे, बड़ी माल और दौलत जमा कर लिया था और ये कूफा के अंदर मुकीम थे। लेकिन इनकी मंशा ये थी कि इमाम हुसैन ना आए, लेकिन हालात ऐसे थे कि इमाम को ख़त ना लिख सके। हालात ऐसे थे कि डरते थे कि अगर मैंने हुसैन पाक की तरफ ख़त रवाना किया कि आप कूफा ना आए, और अगर मेरा ख़त पकड़ में आ गया, जासूसों ने मेरे ख़त को पकड़ लिया, तो मुझे भी कैद में बंद कर दिया जाएगा। तो आप इंतज़ार में थे कि देखे हालात किस करवट बदलते हैं। इमाम अली मकाम जब 2 मुहर्रमुल हराम को करबला की जमीन पर कयाम पजीर हुए तो आपने हबीब इब्न मज़ाहिर की तरफ खत रवाना किया, और खत का मजमून ये था कि ऐ मेरे अजीज दोस्त, वो वक्त आ गया कि मुझे आज एक दोस्त और रफीक की जरूरत